Thank you very much. Today, of my lecture is prime factorization, highest common factor and least common multiple. In short, we call the SCF and the LCM is a very well-known terminology. Now, first I want to brief something known as warm-up, which student might have studied in the previous classes. And first, comparison between factors and multiple. Many students confused about that. So, for that I have made a comparison. Table prepare chart where factor is given and multiple is given. The basic difference is that, just see, first is the 1 is a factor of every natural number. We know that natural number start from 1 to infinity. Like 1 to infinity. Here, multiples of a number is always greater than number. Suppose your number is 5. So, if you multiply 5 by natural numbers like 1, 2, 3 and so on. So, that product 5, 10, 15 are the multiples of 5 and this number can be infinity itself because natural number start from 1 to infinity. So, because of that here it is a multiples of a fraction is infinite and every number is a multiple of itself because every number should be multiplied by 1. So, all these three things should be remembered. That is about the definition of multiples of a number, or you can say natural numbers. Here, factor is every natural number is a factor, like 1, 2, 3 up to infinity. Every number is a factor itself. Suppose you want to write a multiple of 1, 1 is a factor itself. 2, 2 is a factor itself. 4, 1 into 2 into 2, like that. A fraction of a number is an exact divisible of a multiple of itself. Means 5 factor है तो 5 से divisible हो जाएगा जो है. Factor of a number is finite, but here it is a finite number, unlike the infinite multiples. Now, types of number. I will not give much time. Even number, it is divisible by 2. Odd number is equal to even number plus 1, excluding the odd number 1, because 1 is also odd number. So, 1 को assume करें odd number है, and relation between odd and even number is equal to odd number plus 1. That is the brief about the types of the number. अब देखिए, prime number. What is the prime number? Just see, it is a greater than 1 and it has a factor 1 and number itself. अब देखिए, जब ध्यान सुनिएगा जो example 2, 3, 5, 7, 9. Just go. 2 don't have any factor except 1. So 1 and 2. So 2, 3, 5, 7 all are the odd numbers. So the prime number excluding 2 is an odd number. Just देखिए यहाँ पर. It is an odd number excluding 2. Second, no largest prime number is there. Third, smallest prime number is 2. Largest number, infinity has no number itself. So because of that, no largest prime number is given. So 3 star, 3 property of the prime number. Composite number, ध्यान देखिए, it has more than 2 factors. So ये जितने even number हैं, इसके factor जो है 1 से ज़्यादा होगा. Why? 1 is a factor of every number. 2 is a factor 2 into 2, 3 into 2. So this is the composite number. Now 2 in prime number. जब ध्यान सुनिएगा, 2 prime number ये है. अब देखिए 3, 5. After 3, 5 is comes. 5 के बाद 7 आता है. 7 के बाद 9 आता है. 9 after 9, 11 आता है. So these are known as twin prime number. Or prime triplets, same way. 3, 5, 7, 5, 7, 9, 7, 9, 11. This is the triplet prime number. Co-prime number. यहाँ भी देखिएगा. 2 numbers are co-prime number if they do not have a common factor. अब देखिए 2 और 3 में common factor नहीं है. 3, 4 don't have common factor. 5 and 6. All these definitions should be
permanently remembered by the students so that its application can be used in the coming classes or coming lecture. Perfect number, अब देखिए जो है, the sum of all the factor number is equal to 2 into number itself is a perfect number. अब देखिए एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 6 क्या है, 1, 2, 3 and 6 और सम करेंगे तो 12 हो जाएगा. क्या है 12 का मतलब 2 into number, 2 into 6 is equal to 12. So 1, 2, 3, 6 are perfect number. Again I am repeating, per factor of 7, 1, 2, 3, 6 ये है. अब इसको ऐड करिए तो 12 आ जाएगा. दैट मीन्स 2 into number itself is a total of the factors. अब इससे स्टेप दिया गया है, राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100 इन कॉलम वाइज एज शोन इन द नेक्स्ट पेज. आई विल जस्ट शो यू. 1 is a neither prime number nor the composite number. Leave it alone. अब ये आपको यहां पर दिया गया है, एक टेबल प्रिपेयर करना है. आई हैव नॉट कंप्लीटेड बिकॉज इफ a student will do this one then they will understand the meaning of that. अब जरा देखिएगा, हमने स्टेप्स यहाँ लिखा है और इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है जैसे आपके दिया हुआ है सब टेबल है. अब देखिए 11, 12, 13, 14, 15. सो ask the student to write 6, complete it. 16, 17, 18, 19 and 20. Similarly, they should complete this one. Here, just say 5, 5, 5. I have done this one in the row and the column. Complete it and follow that step. This is the column and this is the row. This is the position. This is not the row, this is the column. So I will just rewrite this is a column. अब देखिए स्टेप, फर्स्ट leave 1, encircle 2 and crash all the number till 100. देखिएगा 2 को सर्किल किया गया है और क्रॉस किया गया है 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. अब इसको देखिएगा, यहां देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इनसर्किल 2 क्रॉस ऑल नंबर टिल 100. तो 2 को सर्किल कर दिया गया है और 100 किया गया है. फिर यहां देखिए इनसर्किल इंक्रीज 3 क्रॉस ऑल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3. यहां पर देखो मल्टीपल्स ऑफ 2 यहां पर छूट गया है, तो मल्टीपल ऑफ ऑल क्रॉस ऑल नंबर which is multiples of 2. Of 2 till 100. तो देखिए 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. इसको क्रॉस कर, ऐसे क्रॉस करना है, 1 क्रॉस टिल 100. अब देखिए फिर इनसर्किल 3 को कर लिए एंड क्रॉस ऑल मल्टीपल ऑफ 3. और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब इसमें डबल क्रॉस करना है, 3 3 जा 9, इसमें डबल करना है. 3 3 जा सॉरी क्रॉस ऑल मल्टीपल ऑफ 3 3. हाँ 3 3 जा 9, तो इसको डबल क्रॉस करिए. और 3 4 जा 12 डबल क्रॉस, 3 5 जा 15 डबल क्रॉस. 8 till 100 तक जाना चाहिए. सिमिलरली इन सर्किल 5 क्रॉस ऑल मल्टीपल ऑफ 5. अब देखिए, अब यहां पर 3 देना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अब इसको तो ट्रिपल कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, इसको ट्रिपल कर दीजिए क्योंकि 1 हो गया है, 1 यहां पर ट्रिपल हो जाएगा. और फिर 5 3 जा 15, 15 में भी ट्रिपल कर दीजिए जो. अब नाउ दिस वे you follow the
क्रॉस 1 क्रॉस, 2 सर्किल, 5 सर्किल, 7 सर्किल, 11 सर्किल. अब देखिए, it continues till all number either in circle or cross. Do it yourself. अब देखिए कंक्लूजन क्या है, देखिए there are 25 प्राइम नंबर. जो 2 है देखिए सर्किल है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा. There are 17 composite number 4, 6, 8, 9, 10 which you have defined earlier. Smallest largest number of prime number are 2 and 97. Smallest and largest number of the number are 4 and 100. The prime number of which has same digits 13, 31. Digits same है 37, 73. Find more and check. The co-prime number which do not have the common factor is 3, 5, 4, 9. Find more and check. So this exercise the student should do itself and prepare the table what I have said. that ये आपका जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 like this. So this is just for the practice. अब देखिए, अब यहां पर continues. Sum of 2 even number is always even number. Sum of 2 odd number is always even number. Sum of odd and even numbers are always odd numbers. Sum of 3 odd numbers are always odd number. I have given the example for that. अब देखिए, this is very important, the rule of divisibility. There are 9 or 10 rules which a student should remember. Divisibility by 2 means number containing at once 0, 2, 4, 6, 8 is always divided by 2. Divisible by 2. Divisible by 3. Sum of all the digits of any number is divisible by 3 with 0 remainder. 4. If the number formed by tens and ones of any number is divisible by 4. Example, अब देखिए यहाँ पर देखिए 812 है, 1 10 100 और 1 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. अब देखिए 5. इफ वन डिजिट ऑफ एनी नंबर इज आइदर 0 और 5, 0 और 5 नंबर किसी के एंड में होगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा. सिमिलरली देयर आर यू कैन से 10 divisibility law which has already been taught in the previous classes. Just this is a warm up, so it should be remembered by the student. अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. Find 2 odd prime numbers whose sum is 44. अब देखिए 13 and 31 is equal to 44. अगर वो 100 वाला चार्ट अगर आपको याद है तो आप very easily you can find out this thing. Fill up the blank to make it divisible by 3. अब divisible क्या होना चाहिए, अब देखिए क्यों मैंने रिमाइंड कराया था. देखिए divisible by 3. Sum of all digits is divisible by 3 with 0 as a remainder. Divisible by 3. अब देखिए, अब यहां पर आपको जो है नंबर दिया गया है 4 6 ब्लैंक 8 7 8 2. अब इसको सम करिए. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. 4 प्लस 6 प्लस एक्स मान लीजिए प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू जो भी आए व्हाट्स एवर कम, उसमें क्या हम जोड़े, व्हाट डिजिट शुड बी एडेड जिससे कि 3 डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए. दैट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब देखिए ये मैं आपको बता दें, देखिए यहाँ पर दिया हूं, कर दिया हूं, आप देख लीजिए यहाँ पर इसको 20 प्लस 35 है. अब यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे 3 से डिवाइड हो जाए. 3 से 35 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इफ यू एड 1 सो इट विल बी 36, so it can be divisible by 3. I have given the example also. Prime factorization and the factor t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइम फैक्टराइजेशन अ फैक्टर. अब देखिए इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कंपोजिट नंबर इनटू ए प्राइम नंबर बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस, डिवाइडिंग प्रोसेस और डिविजल मेथड. यहां देखिए दिया हुआ है जो है फैक्टर टी.
90 है, 9 10 जा 90, again 9 3 3 जा 9, 10 2 5 जा, all if these becomes the factors of 90. और सेकेंड मेथड आप डिवीजन मेथड से है, 2 से डिवाइड किया 45, 3 15. अब देखिए यहां देखिए, अब बाय दिस मेथड और दिस मेथड फैक्टर टी इसको बोलते हैं, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं. सेम रिजल्ट आया 2 3 2 5, 2 3 3 5, सेम थिंग. अब देखिए फिल अप द मिसिंग टर्म, 3 में दिया हुआ. आप देखिए 120 है, 10 है, यहाँ पर 12 हो जाएगा जो है. इफ 12 हो जाएगा तो 2 6 या 6 हो जाएगा, 6 है तो 2 3 जाएगा. इसको फिलअप कर दीजिए. अब देखिए क्वेश्चन 1. अब कह रहा है इन फिगर में कहा है कि रिप्लेस दिस बाय स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट. अब क्या है, ये डिविजिबिलिटी पे 9 है, तो इसको देखें डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के नियम को पढ़िए और अप्लाई यहां करिए, देन यू कैन फाइंड द नंबर जस्ट सिमिलर टू देन इन एग्जांपल 2. राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड फाइंड आउट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या, हिंट मैं दे रहा हूं. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999. और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन टी करिए, क्या होगा, वेरी इजीली. अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक मैं बता दे रहा हूं, यहां पर करिए 9, यहां पर 1 1 नहीं, थ्री का 3 into 3 और उसको भी देखिए कर दीजिए 6. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर इज HCF. अब इसके जो है 4 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड बाय फैक्टर, सेकंड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री, थर्ड मेथड डिवीजन, फोर्थ मेथड डिवीजन ऑफ ऑल नंबर टुगेदर. अब मैं यहां पर दे रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं. एग्जाम्पल फाइंड आउट HCF ऑफ 1 is done for you. व्हाट इज दिस, डी. डी यहां पर है, ये आपका ये है नंबर. इसका जो है 4 मेथड मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं. अब देखिए और फैक्टर ऑफ 226 अब कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा. जो है 1 into 226 is equal to 226. अब देखिए 2 into 113 दिस. अब यहां पर लिख लीजिएगा. तो अब इसका क्या हो गया फैक्टर, अब इसके आगे नहीं जा सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते हैं, तो ये फैक्टर ऑफ 226 1 2 113 226, ये चारों आपका जो है फैक्टर्स हो गए जो है. सिमिलरली फैक्टर ऑफ 339 1339 3 into इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता फर्दर, तो फिर इसको यहाँ पर 1 3 113 339. फैक्टर ऑफ 565 1 तो सभी का फैक्टर है, फिर 5 ये है. अब देखिए 1 5 113 339. अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 सभी में है एंड 113 सभी में है, तो इसलिए 1 into, तो ये HCF हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा. HCF इट इज द फर्स्ट मेथड. अब सेकेंड मेथड देखिए. सेकेंड मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल है, वही चीज हुआ है यहाँ पे. एक है 2 1 1 3 3. अब ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस सेम थिंग, केवल आपका जो डिवीजन से मतलब वहां भी डिवीजन किए हैं, यहाँ भी डिवीजन किए हैं. थर्ड मेथड स्टेप 1. अब देखिए जब ध्यान, इसको ध्यान से सुनिएगा. द फैक्टर इज डिवाइड 339 सेकेंड हाईएस्ट बाय द फर्स्ट नंबर एज फॉलो. सेकेंड हाईएस्ट इसको डिवाइड कर दिया, 1 बार गया, यहाँ पर 1 1 आ गया. अब ये आपका डिवीजन हो जाएगा और ये डिविडेंड हो गया. फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया जो है. अब स्टेप 2 देखिए. हियर 113 द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ फर्स्ट 2 नंबर. अब थर्ड क्या है, 565 है, तो थर्ड को इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 0 हो गया. दैट मीन्स दिस बिकम्स द
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय थर्ड मेथड। ये जरा ध्यान से सुनिएगा जो है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेकेंड हाईएस्ट बाय द फर्स्ट नंबर इटसेल्फ, और जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो बिकम डिविजर बन जाएगा, और थर्ड वाले को डिवाइड कर रिमाइंडर शुड बी 0। फोर्थ मेथड, इसको यहां पर लिखिए, बहुत सिंपल है। इफ दिस 3 नंबर इज डिविजिबल बाय वन सिंगल नंबर, उसको करते चलिए तो पता चला 1 1 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा, और फर्दर वी कैन नॉट गो फर्दर, सो दिस बिकम द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। This is the fourth method, and mostly this method is adopted when 3 digits are given, or you can also follow the tree method. This method or tree method, meaning is the same. अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी 3 तरह से है। फर्स्ट मेथड मल्टीपल्स, सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड मेथड डिवीजन। अब देखिए एलसीएम ऑफ 5 and 6, हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये आप जा सकते हैं, जहां तक जाना जाइए। मल्टीपल ऑफ 6 एंड द नंबर विच इज कॉमन इन बोथ मल्टीपल इज द एलसीएम। देखिए identify the common multiples coming first in both lists. It is 30 appearing in both cases. So 30 is the smallest common number. Or note here, this method is preferred for smaller integer to make the factors rational number with the same denominator. ये बहुत simple method है जिसको follow किया जाता है first method जो है। और second method, अब देखिए सेम थिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 का जो है 1 into 5, 6 का 1 into 1 into 2 into 3, here 1, 5, 2, 3 becomes 30. अब इसको ये भी ले सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, when these numbers are such that there is no common factor, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। Generally when you are, this concept is used when adding, subtracting the fraction or the rational number is very very important, क्योंकि यहाँ पे 5 6 में कोई कॉमन नहीं है तो 5 6 या 36 आ गया जो है। थर्ड मेथड डिवीजन, जस्ट आई हैव शोन दिस वन, सो एलसीएम बिकम्स 30। सो आइदर दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन 2 नंबर, बट दिस इज यूज्ड व्हेन देयर आर 2 नंबर। अब देखिए, अब ये प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर दिया हुआ है। एचसीएफ ऑफ ए गिवन 2 नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी नंबर ऑफ 2। मैंने आप देखिएगा 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों से ज्यादा नहीं होगा। मैं एग्जांपल यहां दे रहा हूं एचसीएफ में जो है, यहां देखिए जो है एचसीएफ में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा जो है। अब इसमें आप देखिए 3 डिवीजन है, तो जो 113 है आप जो है दिस नंबर से बड़ा नहीं है। अगर 2 नंबर का एक्सेप्ट यही हुआ तो इससे बड़ा नहीं है, तो इसकी मीनिंग आप वो होता है जो है, इसकी मीनिंग ये है एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। को प्राइम नंबर 3 और 5, 2 3 है तो 2 3 कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा जो है। एलसीएम ऑफ एनी नंबर, एनी गिवन नंबर्स is not less than any given number. LCM of 2 co-prime number is a product of both co-prime number. Example, LCM of 2 and 3 is, जो मैंने कहा था 2 and 5, तो उसका 2 into 10 हो जाएगा। HCF of given number is always factor of LCM. अब जैसे इसका क्या है कि LCM 30 है तो 1 कॉमन है तो HCF 1 है, तो 1 is a factor of 30. If A and B are 2 given numbers such that A is a factor of B, then their HCF is equal to A, LCM is equal to B, or HCF is a factor of B. Note, these 6 points are very important to solve the addition, subtraction of all the fraction and rational number as I have told you earlier. अब देखिए रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी HCF into LCM
इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी है, 4 अननोन नंबर है, एंड आउट ऑफ 4 अननोन नंबर 3 नंबर इज नोन, 4th नंबर कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखिए HCF निकालिए, ये फार्मूला आएगा, एलसीएम का ये फार्मूला आएगा, ये रिमेंबर रखना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिए, कोई बहुत केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मतलब जो है वेरीफाई द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज ए मल्टीपल ऑफ HCF। अब देख लीजिए एलसीएम निकाल लिया, HCF निकाल लिया 2, सो क्या है 2 इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्योंकि ये डिविजल हो जाता है 30 आ जाता है। सो ये आपका देखिए, द स्टूडेंट शुड नो द मल्टीपल्स division of a small number. Unless they will not know the table, they cannot do it. So, because of that, I've always empathized that the students who are in a class 7 onwards or class 6 onwards, they should know table rigorously, at least from 1 to 9. It should go up to 20, but it is always minimum requirement is 1 to 9. अब अगर वही दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 9 and 5 रिस्पेक्टिवली। जरा ध्यान से देखिएगा, अब फर्स्ट एक्चुअल नंबर इज दिस, और इसका रिमाइंडर 9 होना चाहिए, तो 9 को माइनस कर लीजिए और ये आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है, ये है, रिमाइंडर 5 होना चाहिए, तो घटा दिया तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। सो दिस नंबर एंड दिस नंबर इज डिविजिबल। अब देखिए, अब दोनों का HCF निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए बड़ा वाला ये है 2618, इसको डिवाइड करिए, ये आ गया, ये डिविजन बन गया, ये डिविडेंड बन गया। फिर देखिए ये डिविजन बन गया, ये डिविडेंड बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, HCF हमारा 154 आ गया। ये स्टेप लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है। तो स्टेप 1, सिंपली डिवाइड सेकेंड नंबर larger number by the first number which I have already discussed. Remainder of the first division becomes the divisor, and divisor of the first becomes dividend. So continue till 0. So 0 वाला आता है, ये HCF हो जाता है। अब find the greatest 4-digit number which is divisible by 36, 30, 24, 14, leaving remainder 13. अब याद देखेगा जो step, there is a स्टेप 1 देखिए, फर्स्ट इसका एलसीएम निकाल लिया, 360 आ गया। और देखिए फाइंड द मल्टीपल ऑफ 360 टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, क्योंकि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर निकालना है, तो 360 में 1 को मल्टीप्लाई करिए, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, आप करते चलिए और आप पाएंगे कि जब तक 27 में मल्टीप्लाई किए हैं तो ये पाए हैं, और जहां 28 में गए हैं तो 5 डिजिट हो गया है, तो दिस नंबर इज दिस ग्रेटेस्ट 400 नंबर इज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो। अब देखिए स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 देखिए, बेस ऑफ मल्टीपल नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस। अब देखिए एड 13 टू दिस, तो ये बन जाएगा, टू हैव द रिमाइंडर 13 आफ्टर डिवीजन, सो दिस बाय दिस दिस इज इक्वल टू सिंपल वे। सो अब यहां पर क्या है कि अगर किसी को डिवीजन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, इसको समझ नहीं आएगा, HCF नहीं आएगा, LCM नहीं आएगा, तो जान लो। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेशान सब पर जो है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन एक्ट्रैक्टिबल कोटियार्ड मेजरिंग दिस इनटू दिस इज टू बी कवर्ड विद सेम साइज ऑफ द स्क्वायर स्टोन, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द स्टोन इज एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल। थैंक यू वेरी मच।